Good morning, would-be doctors. How is the Josh? Good. Would-be doctors, this is my 45th lecture of this physics crash course. So this is my 6th lecture of thermodynamics, जिसमें आज मैं आपके साथ फ्लो ऑफ हीट डिस्कस करेंगे. What is the flow of heat? Would be doctors, the heat can be flowed in 3 ways. First one is conduction, second is convection, and third is radiation. Conduction usually takes place in solids, convection in fluids means liquids and gases, and no medium is required for the irradiation. What is the law of conduction? Ki suppose we are having a solid. In that solid, suppose this is a solid, एक conductor है, and length of this conductor is L and area of cross section is A. Ends of this conductor are at different temperatures. One is at T1, another is at T2. So in this conductor, the heat will flow under the difference of temperature, and this rate of flow of heat in this conductor will be क्या होगी? That is dq by dt. This is equal to minus ka dt by dx. What is here? dt by dx, this is called temperature gradient. K is here thermal conductivity, A is the area of cross section, and this dq by dt is the rate of flow of heat. Here, just remember that this rate of flow of heat is having the same analogy as that of rate of flow of charge. As in case of flow of charge or flow of electric current, we consider electric current, electric resistance. Here we are having thermal resistance, and what is that? Thermal resistance is, that is L upon Ke. वहां पे हम क्या लेते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेते हैं. यहां पे हमारे पास क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी है. The substances which are good conductor of electricity, those substances are good conductor of heat also. So what is the significance of here? Negative sign. Here negative sign implies that heat is flowing from high temperature to low temperature की तरफ heat क्या करती है? Flow करती है. Similarly, क्या आपके पास जिस तरह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टर्स को हम सीरीज में लगाते हैं और पैरेलल में लगाते हैं, सिमिलरली आपके पास थर्मल कंडक्टर्स भी क्या हैं? सीरीज में लगते हैं, पैरेलल में लगते हैं. व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होती है? सम ऑफ देयर टोटल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हो जाती है. मींस देयर आर टू थर्मल कंडक्टर्स हु रेजिस्टेंसेस आर R1 and R2. In that case, their effective resistance will be equal to R1 plus R2. If there are two thermal conductors which are connected in parallel, और उनकी effective resistance के अगर each की resistance R1 and R2 है, then their effective resistance will be 1 by R is equal to क्या होगी? 1 by R2. Now suppose we are having these, इसके ऊपर दो छोटे-छोटे बहुत अच्छे multiple choice question आते हैं. जैसे कि there are two thermal conductors which are connected in series like this, and this thermal conductor is having the thermal conductivity K1, this is having the thermal conductivity K2, and their lengths are L1 and L2. Both are having same area of cross section. दोनों के area of cross section क्या है? Same है. और this thermal conductor is kept at temperature T1
दिस इज एट टेम्परेचर T2। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत अच्छा, बार बार डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द इंटरफेस, मींस जिस सरफेस के साथ दोनों थर्मल कंडक्टर्स आपस में कनेक्टेड है उसका टेम्परेचर क्या होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। अब देखिए कि जब भी हम कभी भी किसी कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ हीट लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि वहां पे स्टडी फ्लो है। स्टडी फ्लो मींस थ्रू आउट dQ/dt इन दिस थर्मल कंडक्टर दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ये हम सपोज करके चलते हैं। तो अब अगर हम सपोज कर लो कि दीज आर द टू कंडक्टर्स A एंड B, A और B आपके पास दो थर्मल कंडक्टर्स हैं। अब आपके पास एक कंडक्टर के लिए आपके पास जो dQ/dt होगा, व्हाट विल बी दैट, हियर dQ/dt विल बी इक्वल टू क्या होगा, K1A, दैट विल बी T1 माइनस Ti डिवाइड बाय L1। क्लियर। सिमिलरली सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, dQ/dt दैट इज इक्वल टू K2A Ti माइनस T2 डिवाइड बाय L2। तो इन दोनों इक्वेशन से व्हाट वी कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, और जो टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस क्या आ जाएगा, दैट कम्स हियर Ti। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं तो यहां से आपके पास Ti की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। व्हाट इज दैट, दैट इज K1 T1 L2 प्लस K2 T2 L1 डिवाइडेड बाय K1 L2 प्लस K2 L1। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। अगर आपके पास सपोज कर लीजिए कि दोनों थर्मल कंडक्टर्स की लेंथ क्या है, सेम है, L1 इज इक्वल टू L2 है, तो आपके पास टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस क्या बन जाएगा, K1 T1 प्लस K2 T2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 बन जाएगा। और अगर सपोज कर लो कि दोनों के आपके पास थर्मल कंडक्टिविटीज भी सेम है, देन द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेरेंस मींस बीच का जो टेम्परेचर होगा, एक तरह से एक थर्मल कंडक्टर है, दैट विल बी द एवरेज ऑफ देयर टेम्परेचर। उस केस में जो टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस आ जाना है, दैट विल बी T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और इसमें एक सेकंड आपके पास ये दो थर्मल कंडक्टर्स हैं which are connected in series. When they are connected in series, lengths are different, area of cross-section of both are same and उनके एंड्स के टेम्परेचर्स क्या है, डिफरेंट है। तो हमने एक तो पहले इसका टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस कैलकुलेट कर लिया। सेकंड आपके पास इसमें पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो इसकी जो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगी, दैट इज K इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 divided by L1 by K1 plus L2 by K2. This is the equivalent thermal conductivity of these two thermal conductors which are connected in series. How it is calculated? Equivalent thermal conductivity कैसे कैलकुलेट की हमने, यहां से पहले हमने T1 माइनस Ti कैलकुलेट कर लेंगे, फिर Ti माइनस T2 कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम एक सपोज कर लेते हैं कि इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K है, उसके लिए हम dQ/dt लिख देंगे। वो dQ/dt क्या होगा, Ka इंटू T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L1 प्लस L2। वहां से उसको सॉल्व करके आपके पास इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेरेंस। सेकेंड रिजल्ट इज देयर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। और फर्स्ट रिजल्ट मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है और दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, RS, दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगी। तो आपने तीनों ही रिजल्ट याद रखने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ एग्जांपल्स मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। सेकंड है, अगर आपके पास दो थर्मल कंडक्टर्स क्या हैं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग इज मोर हियर। अगर सपोज कर लो इस तरह से n थर्मल कंडक्टर्स हैं
और उनकी लेंथ L1 L2 डैश डैश Ln है। थर्मल कनेक्टिविटी K1 K2 K3 डैश डैश Kn है। तो इक्विवेलेंट थर्मल कनेक्टिविटी क्या आ जाएगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 डैश डैश प्लस Ln डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस डैश डैश प्लस Ln बाय Kn आ जाएगी। अगर उन सब की लेंथ सेम है तब इक्विवेलेंट थर्मल कनेक्टिविटी K क्या आ जाएगी, N डिवाइडेड बाय 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 डैश डैश प्लस 1 बाय Kn। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 डैश डैश प्लस Rn आ जाएगी। सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द थर्मल कंडक्टर। इसी तरह आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, आपके पास दोनों थर्मल कंडक्टर्स की लेंथ्स डिफरेंट थी, दोनों के एरिया क्रॉस सेक्शंस क्या थे, सेम थे। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि दीज आर द टू थर्मल कंडक्टर्स व्हिच आर कनेक्टेड लाइक दिस। इनकी लेंथ्स क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी, लेकिन दोनों के बोथ आर हैविंग दी सेम लेंथ, व्हाट इज दैट, L। लेकिन इन दोनों के आपके पास एरियाज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन क्या होगा, A2 होगा। तो इसकी थर्मल कनेक्टिविटी K1 है, यहाँ पे इसकी थर्मल कनेक्टिविटी क्या है, K2 है। तो इस केस में भी आपके पास वही दो चीजें, आपके पास यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी आपके पास इन दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 बाय Rp इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 आ जाएगा। और इक्विवेलेंट थर्मल कनेक्टिविटी इस केस में जो होगी दैट विल बी K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। दिस इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज ख्याल रखना क्या है कि इसका टेम्परेचर T1 है, सारे एक सरफेस का, दूसरे सरफेस का टेम्परेचर T2 है। हुआ क्या है, यहाँ पे आपके पास जो टोटल हीट Q आई, कुछ हीट यहाँ पे चली जाएगी Q1 और कुछ हीट यहाँ पे चली जाएगी Q2। ये चीज आपने ख्याल रखनी है। अगर इसी तरह से आपके पास N थर्मल कंडक्टर्स हैं तो इक्विवेलेंट थर्मल कनेक्टिविटी क्या आ जाएगी, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस डैश डैश प्लस Kn An डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश प्लस En। और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी, 1 बाय Rp इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 डैश डैश प्लस Rn हो जाएगी। अगर यहाँ पे सबके एरियाज इक्वल हैं तो इक्विवेलेंट थर्मल कनेक्टिविटी क्या आ जाएगी, दो के केस में K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2 आ जाएगी। अगर N है तो क्या आ जाएगी, K1 प्लस K2 डैश डैश प्लस Kn होल डिवाइड बाय N आ जाएगी। तो बहुत ही आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास Y शेप में 3 थर्मल कंडक्टर्स दिए हुए हैं। व्हाट इट इज गिवन, दीज आर द 3 थर्मल कंडक्टर्स। ऐसे हैं, Y शेप में पड़े हुए हैं। एक थर्मल कंडक्टर ये है, दूसरा थर्मल कंडक्टर आपके पास ये है, और तीसरा थर्मल कंडक्टर क्या है आपके पास, दिस वन। दीज आर द 3 थर्मल कंडक्टर्स। ये जो थर्मल कंडक्टर है दिस इज ऑफ स्टील, ये स्टील का है। और आपके पास ये थर्मल कंडक्टर क्या है, ब्रास का है। दिस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो थर्मल कंडक्टर है थर्ड वाला, दिस इज ऑफ कॉपर है, ये आपके पास कॉपर का है। ये डायग्राम, दिस डायग्राम इज गिवन। व्हाट इज द क्वेश्चन, कहता है रॉड्स ऑफ कॉपर, ब्रास एंड स्टील आर वेल्डेड टुगेदर टू फॉर्म ए Y shaped as shown in diagram. The cross-sectional area each of rod is 4 centimeter square. The end of copper rod is maintained at 100 degree centigrade, and ends of the brass and steel rod are at 0 degree centigrade. Assuming that there is no loss of heat from the surfaces of the rod, the lengths of the rods
आर, कॉपर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द रॉड्स आर 46 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर respectively. This, what is the temperature of the junction point? इस जंक्शन पॉइंट का आपके पास टेम्परेचर पूछा है। पहले तो ये पार्ट पूछा है, इसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए हाउ विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। देखिए क्या होगा, आपके पास यहां से जो हीट जाएगी, सपोज हेयर हीट इज फ्लोइंग Q, कुछ पार्ट इसका इधर चला जाएगा Q1, कुछ पार्ट आपके पास इधर चला जाएगा, दैट विल बी Q2। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 होगा, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या हो जाएगा, Q बाई टी इज इक्वल टू Q1 बाई टी प्लस Q2 बाई टी हो जाएगा। तो ये Q बाई टी क्या होगा, इसका जो एरिया है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर के U into A, temperature 100 minus this T divided by क्या हो जाएगा, length of this, that is 46 centimeter. Clear? Now Q1 by T क्या होगा, that will be K of steel into A into T minus 0 divided by its length is 12 plus K of brass into A T minus 0 divided by 13 सेंटीमीटर। क्लियर? अब क्वेश्चन में दिया हुआ है K for copper, what it is given, that is 0.92 it is given, and K for brass is given, that is 0.26, that is 0.26, whereas K for steel is 0.12। ये आपके पास वैल्यू दी हुई है। क्लियर? तो जब ये वैल्यू रखेंगे, ये 46, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, ये कितना रह जाएगा, दिस विल बी 0.02। क्लियर? सॉरी, दिस इज 0.2, और ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, दिस बिकम्स 0.01। Clear? Now this is also 0.02. Now this will be cancelled, this becomes 0.02। Clear? तो आपके पास ए सारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिंपल आपके पास क्या रह गया, इसमें अननोन फैक्टर क्या रह गया, टी रह गया। तो यहां से सॉल्व करोगे, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगी। सो by solving it here, तो T comes 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आपके पास कॉमन क्वेश्चन है, और एक आधी बार पीछे नीट एग्जामिनेशन में आ भी चुका है। नेक्स्ट इट इज आस्क्ड इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द हीट करंट इन द कॉपर रॉड। कॉपर रॉड में हीट करंट, दिस dQ/dt को हीट करंट भी हम कॉल कर सकते हैं। तो आपके पास ये वाली चीज पूछी है, KUA 100 माइनस टी डिवाइडेड बाय 46। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है आपके पास ईच रॉड का, दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, KU पता है, टी हमारे पास कैलकुलेट हो गया। तो इस तरह से हीट करंट इसने कॉपर में पूछा है, अगर आपके पास हीट करंट स्टील में पूछा हो वो भी कैलकुलेट हो जाएगा, हीट करंट ब्रास में पूछा हो वो भी आपके पास बड़े आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज बेस्ड अपॉन दिस टेम्परेचर ऑफ इंटरफेरेंस। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस के ऊपर क्वेश्चन है कि आपके पास व्हाट इट इज गिवन, कि क्वेश्चन इज a partition wall has 2 layers A and B in contact, each made of different materials. They have same thickness by the thermal conductivity of layer. They have same thickness. The thermal conductivity of layer A is twice that of layer B. If the steady state temperature difference across the wall is
50 Kelvin, then correspondingly difference across the layer A is। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला याद है टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस का, आप बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। व्हाट इट इज गिवन, देयर आर टू लेयर्स, दो हमारे पास लेयर्स हैं, वन इज ए एंड अनदर इज बी। और क्या कहा गया है, अगर आपके पास एक की थर्मल कनेक्टिविटी क्या है, K है, तो दूसरे की थर्मल कनेक्टिविटी कितनी है, 2K है। दोनों के एरिया ऑफ सेक्शन भी सेम है और दोनों की आपके पास लेंथ भी सेम है। व्हाट इट इज गिवन, कहता है द स्टडी टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द वॉल इज 60 केल्विन, देन कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास इनके वॉल्स के क्रॉस मींस यहाँ पे अगर T1 है, यहाँ पे T2 है, T1 माइनस T2 क्या है, दैट इज गिवन, व्हाट इज गिवन, दैट इज 60 केल्विन दिया हुआ है। तो आपके पास पूछा गया है कि पहली ए वॉल के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, वी विल कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस कैलकुलेट कर लेंगे फ्रॉम द डायरेक्ट रिजल्ट, विच इज द रिजल्ट K1 T1 that is K1 T1 L2 plus K2 T2 L1 divided by K1 L2 plus K1 L1। अब आपके पास यहाँ पे L1 और L2 क्या हैं, सेम दिए हुए हैं, तो आपके पास T1 और T2 पता है, आपके पास टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस आ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस आ जाएगा तो फर्स्ट T1 पता है आपको, तो T1 माइनस TIB आपके पास इसी रिजल्ट से कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके ऊपर, कहता है टेम्परेचर ऑफ द टू आउटर सरफेस ऑफ कंप्लीट स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू मटेरियल्स हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटीज K and 2K। The thickness X and 4X respectively are T2 and T1. T2 is greater than T1. Rate of heat transfer through the slab in steady state is A into T1 minus T2 into K divided by X into F. Then F is equal to। अब क्या दिया हुआ है, आपके पास ऐसे दो स्लैब्स दी हुई हैं, these are the two slabs given in the question, और इन दोनों स्लैब्स की थर्मल कंडक्टिविटी क्या दी हुई है, एक की थर्मल कंडक्टिविटी K है तो दूसरे की थर्मल कंडक्टिविटी क्या दी हुई है, 2K दी हुई है। और क्या दिया हुआ है आपके पास, इसकी जो लेंथ है दैट इज गिवन X और दूसरे की जो लेंथ दी हुई है व्हाट इट इज गिवन 4X। क्लियर। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या दिया हुआ है T1, इधर टेम्परेचर क्या दिया हुआ है आपके पास T2 दिया हुआ है। क्लियर। एंड इट इज गिवन कि हियर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दैट इज dQ by dt, व्हाट इट इज गिवन A into T1 minus T2 into क्या दिया हुआ है K whole multiply by X and into F, this is given, or it is asked कि what is the value of this F, F की वैल्यू क्या होगी। अब ये होल के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दिया हुआ है, तो इट मींस दैट आपके पास ये जो K है ये इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है। तो इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, एज दे आर इन सीरीज में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, क्या बताया था दो के लिए, L1 plus L2 divided by L1 by K1 plus L2 by K2. What is here L1? L1 is here X, L2 is here 4X. Clear. X divided by K plus 4X divided by 2K. तो यहाँ पे आपके पास ये सारा X कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपके पास क्या बन जाएगा, this becomes 10 divided by, this becomes 10K divided by
6, आपके पास दिस बिकम्स 5/3K बन जाएगा। मीन्स हियर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, 5/3K है। x क्या है आपके पास, टोटल लेंथ कितनी होगी, x + 4x, दिस इज हियर 5x। क्लियर, तो 5 यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। इट मीन दैट f की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 1/3 आ जाएगी। तो k यहाँ पे क्या आ गया, 5/3K आ गया, x क्या आ गया आपके पास, 5x आ गया। तो जब ये आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 5/3 और 5 कैंसल आउट हो गए, तो आपके पास सिंपल क्या रह जाएगा, 1/3 रह जाएगा। तो इट मीन दैट द वैल्यू ऑफ f इज 1/3। क्लियर। नेक्स्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के डायरेक्ट क्वेश्चन है, कंसिडर ए कंपाउंड स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स having equal thickness and thermal conductivity K and 2K, equivalent thermal conductivity of the slab is। बड़े आपसे आराम से इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी डायरेक्ट आपके पास सीरीज में लगे हुए हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके पास इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगी। सो दीज आर सम एग्जांपल्स व्हिच आर बेस्ड अपॉन दिस व्हेन these thermal conductors are connected in series and in parallel। क्लियर। सेकंड हमारे पास जो है, जो फ्लो फीट है, दैट टेक्स प्लेस थ्रू कन्वेंशन। तो कन्वेंशन के लिए क्या है, इसमें क्या है, इसे हम फोर्स कन्वेंशन भी कह देते हैं, क्योंकि यहां पे जो हीट फ्लो करती है दैट फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस इन द डेंसिटीज। तो क्या होता है, कन्वेंशनल रिक्वायर्स, it requires a medium, it is the process in which heat transferred from one place to other by actual movement of the heated substance। When a fluid in a container is heated, the fluid is the bottom gets heated due to conduction through the bottom of the container, its density decreases, consequently it rises up। At the same time, denser cool fluids will move down, and thus convection currents are set up in the liquid, and the whole fluid is heated by actual movement of mass। This type of convection, which results from difference in the densities, is called natural convection। However, if the heated fluid is forced to move by blower, fan or pump, as in case of AC, the process is called force convection। और जो फोर्स कन्वेंशन में आपके पास जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है दैट इज इक्वल टू HA डेल्टा थीटा होता है, वेयर H is the constant of proportionality, is called conventional coefficient, A is the area of cross section, delta theta is the change in temperature। कुछ पॉइंट्स आपके पास रिगार्डिंग कन्वेंशन आपको याद रखने होंगे। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द कन्वेंशन इज natural convection takes heat from bottom to top, while forced convection in any direction। Very important point। Second point is, in case of natural convection, convection currents moves warm fluids upwards and cool fluids downward। That is why heating is done from base while cooling from top। Third point is, natural convection cannot take place in a gravity free region such as freely falling lift or orbiting satellite। Natural convection plays an important part in ventilation, in changing climate and weather, and in forming land and sea bridges and trade winds। Next is very important point, force convection of the blood in our body by heart helps in keeping the temperature of the body constant। These are some points which you have to remember for this convection। And third, by which the heat can flow, that is the radiation, the process by which heat is transferred directly from one body to another without requiring any medium is called radiation।
It is by the radiation that heat from the sun reaches the earth or a hot object hung in a vacuum cools. तो कुछ पॉइंट्स हमारे पास रेडिएशन के लिए भी आपको याद रखने होंगे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर from one place to another, as in this mode heat energy is propagated with a speed of light, that is 3 into 10 raised power 8 meter per second. Second point is also very important, as all the bodies radiate energy at all temperature and at all time. Radiation from a body can never be stopped but can be minimized. Third point, it does not affect the medium through which it passes. For example, when the heat radiation is conversed by a lens on a body which is opaque to it, the body is heated but not the lens. Next point is also very important. Rough and dark is that black surfaces are good absorber, while shining and smooth surfaces are good reflector of heat radiations. Next point, glass and water vapors have the property of transmitting shorter wavelength heat radiations through them, while reflecting longer ones. Next point, heat radiations are invisible and like light travels in straight line, cast shadows, affect photographic plates, and can be reflected by mirrors and reflected by lenses. Next is very important. It is detected by thermocouple, thermopile, radiometer, and so on. Spectrum of the heat radiations is produced and studied with the help of rock of salt prisms. So with these radiations we have defined different laws, Kirchhoff's laws, Newton's law, Stephen's law, Wien's displacement law, Planck's law. इन सभी लॉज को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. अगर सपोज कर लो किसी सरफेस के ऊपर, जस्ट रिमेंबर वुड बी डॉक्टर्स, किसी सरफेस के ऊपर क्यों अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस फॉल कर रही हैं, तो व्हाट हैपेंस, उसका कुछ पोर्शन क्या कर जाता है. सपोज कर लो इस सरफेस के ऊपर आपके पास क्यों अमाउंट की टोटल हीट रेडिएशन फॉल कर रही हैं. इसमें से क्या हुआ, कुछ पोर्शन इसका क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया. क्यू आर अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन रिफ्लेक्ट कर दी, क्यू टी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन क्या कर दी, ट्रांसमिट कर दी, और क्यू ए अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन क्या होगी, सरफेस ने अब्जॉर्ब कर ली. तो फ्रैक्शन ऑफ हीट रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बाय इट is called its reflecting power or reflectance, or that is R is equal to QR by Q. Fraction of heat radiation absorbed by it is called its absorbing power or absorptance, that is QA upon Q. Or fraction of heat radiation transmitted by it is called its transmitting power, that is called QT upon Q. Means, or we can say A plus R प्लस टी, यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है. A is the absorptance, R is the reflectance, T is the transmittance. अगर सपोज कर लो किसी बॉडी की ट्रांसमिटिंग पावर क्या है, 0 है, तो A प्लस R क्या होगा, 1 होगा. तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, गुड अब्जॉर्बर आर बैड रिफ्लेक्टर. जो अच्छे अब्जॉर्बर हैं वो क्या होते हैं, बैड रिफ्लेक्टर होते हैं, और जो बैड अब्जॉर्बर होते हैं वो क्या होते हैं, गुड रिफ्लेक्टर होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट रिमेंबर इट. एक हमने इसके लिए किर्चॉफ्स लॉ डिफाइन किया हुआ है. व्हाट इज द किर्चॉफ्स लॉ, कहते हैं रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर, रेशियो ऑफ द मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस, रेशियो ऑफ द मोनोक्रोमैटिक एमिटेंस टू द मोनोक्रोमैटिक absorption. Mono means if a body is absorbing or emitting the radiation of particular wavelength range, that is called its monochromatic emittance or monochromatic absorptance, or that remains constant, and that constant is always equal to the monochromatic emittance of a perfectly
ब्लैक बॉडी, ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा इज कांस्टेंट। तो यहां पे हम कहते हैं गुड एमिटर आर गुड ऑब्जर्वर। यहां पे हमने कहा था कि गुड ऑब्जर्वर आर बैड रिफ्लेक्टर, यहां पे हम कह रहे हैं गुड ऑब्जर्वर आर गुड एमिटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे हम एक टर्म एमिसिव पावर भी डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशंस emitted by body per second per unit area of the surface is called its emissive power। तो आपके पास if there are good emitter which are a good absorber, इसके लिए बहुत हमारे पास अच्छी अच्छी एप्लीकेशन हैं। डायरेक्ट इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहली एप्लीकेशन है, कहता है सैंड इज रफ एंड ब्लैक सो इट इज ए गुड ऑब्जर्वर, hence in desert days when radiation from the sun incident on the sand will be very hot. Now in accordance with the Kirchhoff's law, good observer is a good emitter. So at night when sun emits radiations will be cooled. That is why in deserts days are hot and nights are cooled. Second application देखिए, when a shining metal ball having some black spots on its surface is heated to a high temperature and is seen in dark, the black spots shine brilliantly and the shining ball becomes dull or invisible. The reason is that black spots on heating absorbs radiation, so emit these in the dark, while the polished shining parts reflect radiations and absorbs nothing, so does not emit radiations and becomes invisible in the dark. Third application is also very important. When white light passes through the sodium vapors and the spectrum of transmitted light is seen, we find two dark lines in the yellow region. These dark lines are due to absorption of radiation by sodium vapors which it emits when heated. This is in accordance with the Kirchhoff's law, good emitter or good observer. Next point is also very very important, that is the Fraunhofer lines are dark lines in the spectrum of sun and are explained on the basis of Kirchhoff's law. When white light emitted from the central part of the sun, which is called photosphere, passes through the atmosphere, that is called chromosphere, radiations of these wavelengths will be absorbed by the gases present there, which they usually emit, as a good emitter is a good observer, resulting in a dark lines in the spectrum of sun, which are known as Fraunhofer lines. Next point is also very very important. A red piece of glass appears red as it reflects red and absorbs all other radiations incident on it. So if a piece of red glass is heated to red hot, it will reflect red and hence in dark will be invisible. However, if it is heated to incandescence white hot greater than 800 degrees centigrade, it will reflect red and will absorb all other. So when seen in dark, it will glow with emission of radiations which it has absorbed. It will glow with emission of radiations complementary to color, that will be white deficient in red or bluish. So this is a very very important question. Similarly, if a blue glass is heated to red hot, it will absorb red and so in the dark will appear red. However, if it is heated in incandescence, it will reflect blue and so in the dark will glow with the emission of radiation complementary to blue, that will be white deficient in blue or yellow or reddish. So these are very very important multiple choice question which can be asked कि आप अगर आप कोई भी आपके पास रॉड है, पीस ऑफ ग्लास रॉड है, रेड पीस ऑफ ग्लास रॉड है, हीटेड करते हो तो कहाँ ही देखते हो, आपको कौन सा कलर दिखाई देगा,
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके कुछ लॉज हैं जो कि हम आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वुड बी डॉक्टर्स, एज यू नो, माय ऑल दीज क्लासेस आर डेडिकेटेड टू दिस nation and dedicated to corona warriors of this nation and dedicated to the PM Care Fund. So would be doctors, आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, जागरूक रहना है, जागृत रहना है और कोरोना को हराना है, इंडिया को जिताना है। तो इसके लिए हम एक शांति पाठ भी करेंगे। ओम द्यो शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषध्या शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति।